پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم ڈیزاسٹر مینجمنٹ پڑھیں گے جس کا پہلا ٹاپک ہے نیچرل ڈیزاسٹرز۔ ڈیزاسٹرز اتنے ہی پرانے ہیں جتنے کی ہیومن ہسٹری ہے، لیکن کچھ ایئرز سے یا ریسنٹ پاسٹ سے اس کی جو رسک ہے وہ ڈرامیٹیکلی تیز ہو گئی یا انکریز ہو گئی اس میں۔ یہ نیچرل ڈیزاسٹر جو ہوتا ہے یہ نیچرل بھی ہو سکتا ہے، مین میڈ بھی ہو سکتا ہے، اور جس کو مین میڈ کو ہم یا ٹیکنالوجیکل ایونٹ جس میں فزیکل ڈیمیج یا ڈسٹرکشن ہوتا ہے یا وائڈ اسپریڈ لاس ہوتا ہے لائف کا، یا چینجز آتے ہیں کچھ انوائرمنٹ میں، یا ڈسٹرائے ہو جاتا ہے اکنامک یا سوشل کلچر یا لائف انسانوں کی تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ جو اگر ہم اس نیچرل ڈیزاسٹرز کی بات کریں گے جو ریسنٹ ایئرس میں آئے ہیں، مثال کے طور پر 2004 میں انڈین اوشن میں سونامی آئی جس سے بہت ساری تباہی ہو گئی، بہت سارے لوگ مر گئے، یا 2005 میں مظفر آباد میں جو ارتھ کوئک آ گیا، اسی طرح 2005 میں جو والٹنگو میں سنو ایولانچ آ گیا، اسی طرح 2010 میں کلاؤڈ برسٹ ہو گئی جو لیہ میں، یا لینڈ سلائڈز ایٹسٹرا، یہ مین میڈ یہ نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں۔ اگر ہم مین میڈ ڈیزاسٹرز کی بات کریں گے تو اس سے بھی بہت زیادہ سیریس ڈیمیج ہوتا ہے لائف کو، پراپرٹی کو یا انوائرمنٹ کو، جو لوگوں کی جو انڈیوسڈ ایکٹیویٹیز ہے اس کی وجہ سے۔ اگر ہم اس کی ایک مثال لیں گے، یہاں ہندوستان میں 1984 میں بھوپال میں جو گیس ٹچ جو اس سے ہزاروں لوگ مر گئے، اسی طرح 1994 میں کومبیکو نیم میں سکول میں آگ لگ گئی تو اس میں سے بہت سارے بچے مر گئے، یا کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اسی طرح کوئی بم بلاسٹ ہوتا ہے، روڈ یا ریل ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، یا گلوبل وارمنگ ہو جاتی، اس سے جو انسانوں کو یا پراپرٹی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر ہم کشمیر کی بات کریں گے تو کشمیر کو زیادہ اس میں ڈیزاسٹرز آنے کا خطرہ ہے، خاص کر لینڈ سلائڈز کا، ارتھ کوئکس کا، فلڈز کا، سنو ایولانچز کا یا کلاؤڈ برسٹ کا، ان چیزوں کا اس میں زیادہ آنے کا خطرہ ہے کشمیر میں۔ تو اس کے جو اب اگر ہم دیکھیں گے ارتھ کوئک کی بات کریں، جو اس نیچرل ڈیزاسٹر کی بات کریں گے، جیسے ارتھ کوئک، لینڈ سلائڈ، فلڈز، سنو ایولانچز، کلاؤڈ برسٹ، یہ سارے نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں۔ ہم ارتھ کوئک کی بات لیں گے، جو یہ ارتھ کوئک ہے یہ کیا ہے؟ یہ سڈن شیک ہو جاتی ہے، اچانک ارتھ شیک ہو جاتی ہے اور بہت ساری انرجی اس میں ریلیز ہوتی ہے، یہ انپریڈکٹیبل ہوتی ہے، اس میں کوئی انسان یہ پیشن گوئی نہیں کر سکتا ہے کب آنے والا ہے یہ ارتھ کوئک۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ زمین اچانک شیک ہو جاتی ہے، بہت زیادہ گیسز یا بہت زیادہ انرجی ریلیز ہو جاتی ہے جو کہ لکوڈ میں آتی ہے، باہر پھینک دیتی ہے زمین، اور زمین شیک ہو جاتی ہے، جس کو ہم لیکویفیکیشن بھی کہتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ جو اس کا جو جہاں سے یہ ارتھ کوئک جو اس کا سینٹر ہوتا ہے، اس کو ایپک سینٹر بھی بولتے ہیں، اور جس سے اس ویوز کو کتنی تیز تھی یا کس حساب سے جنریٹ ہوئی ہے ویوز، کس سے اس کو ماپا جاتا ہے، اس کو سسموگراف بھی بولتے ہیں۔ اور ہم دیکھیں گے اس کا میگنیچیوڈ آف ارتھ کیا ہے، اس کا میگنیچیوڈ آف ارتھ کوئک کیا ہے، تو اس کو ریکٹر سکیل بھی جس کو ماپا جاتا ہے۔ اس ارتھ کوئک سے کیا ہوتا ہے؟ بلڈنگز کولیپس ہو جاتی ہے، جو انفراسٹرکچر ہے، جو انوائرمنٹ ہے، لوگوں کی لائف ہے وہ ختم ہو جاتی، لوگ مر جاتے ہیں بہت زیادہ۔ اسی طرح شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے، گیس لیک ہو جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، واٹر پائپس ڈیمیج ہو جاتے ہیں، واٹر ٹینکس، فلڈس آتے ہیں، یا ڈیمز کولیپس ہو جاتے ہیں، جس سے یہ سیلاب آ جاتا ہے، بہت زیادہ تباہی مچ جاتی ہے ارتھ کوئک سے۔ اب جو ہندوستان ہے اس کو زوننگ میپ نے اس کو ارتھ کوئک زوننگ میپ نے اس کو 4 سسمک زونز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سیکنڈ زون 3rd 4th اینڈ 5th۔ اگر کشمیر کی کلاسیفیکیشن دیکھیں گے تو کشمیر کو تقریباً اس کو 4th اینڈ 5th زون میں رکھا گیا ہے، مطلب کہ اس میں زیادہ چانسز ہے ارتھ کوئک آنے کے کشمیر میں۔ تو اگر ہم کچھ اس پر دیے گئے ہیں کتاب پر کب کشمیر میں ارتھ کوئک آیا ہے زیادہ،
मतलब जोर के। इसमें उधमपुर में आया है 1951 में 6.0 था इसका मैग्नीट्यूड। इसी तरह उधमपुर में 1962 में आया है जिसका मैग्नीट्यूड 6.0 था। कठुआ में आएगा 1947 में जिसमें 6.0 था। दोबारा कठुआ में आया 1950 में, उसमें भी 0.6 था। इसी तरह कठुआ में तीसरी बार आया है 1951 में, उसका भी 0.6 था। और ये मुजफ्फराबाद में 2005 में आया है जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा था 7.6, जिससे बहुत ज़्यादा तबाही हो गई पाकिस्तान में भी और यहाँ हिंदुस्तान कश्मीर में भी। तो इससे क्या होता है, मैंने अभी बताया कि इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो अगर हम देखेंगे इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। इससे बहुत ज़्यादा मतलब अचानक जब ज़मीन बहुत बड़े एरिया पर ये अर्थक्वेक आता है, अचानक ज़मीन शेक हो जाती है। और मैंने कहा कि अनप्रिडिक्टेबल होता है, कोई इसकी प्रिडिक्शन नहीं कर सकता है कब आने वाला क्या होता है। इससे क्या होता है, एक तो लॉस ऑफ लाइफ होता है और प्रॉपर्टी भी लॉस हो जाती है। लैंडस्लाइड्स भी इसकी वजह से ज़मीन हिलती है, लैंडस्लाइड भी आ सकते हैं, एवलांचेस भी आ सकते हैं। इसी तरह कहीं कहीं आग लग जाती है, अगर गैस पाइप लीक हो गई या किसी इलेक्ट्रिक प्लांट को आग लग गई या गैस पाइपलाइन टूट गई तो उससे आग लग सकती है। इसी तरह फ्लड्स आ सकते हैं जब कोई डैम टूट जाता है या कोई किसी वाटर बॉडी, जो नेचुरल वाटर बॉडी के नीचे अगर फ्लड ये आ गया, भूचाल आ गया तो पानी ज़्यादा ज़ोर से शेक होने लगा, ऊपर आने लगा तो उससे सैलाब भी आ सकता है। लोग ट्रोमा में चले जाते हैं, इसमें साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो जाती है। इसी तरह साइकोलॉजिकल लोग वो इसमें आते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। जो एसेंशियल सर्विस होती है जैसे वाटर सप्लाई या ये कम्युनिकेशन या पावर सप्लाई, ये ट्रांसपोर्ट, ये भी डिस्टर्ब हो जाता है। जो मुल्क की इकॉनमी है या सोशल स्ट्रक्चर जो होता है नेशन का, वो डिस्टेबलाइज हो जाता है अर्थक्वेक्स की वजह से। जैसे हम बात करेंगे 2005 में जो पाकिस्तान में जो इसका असर इसे यहाँ कश्मीर में भी उसका पड़ा, उसका जो 2008 अक्टूबर 2005 को आया उसमें अर्थक्वेक जिसका मैग्नीट्यूड था 7.6 रेक्टर स्केल पर। मुजफ्फराबाद उसका एपिक सेंटर था। तो उसमें इसके क्या हुआ, ये हिस्ट्री में डेडलीस्ट अर्थक्वेक माना जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जिसमें बहुत ज़्यादा लाइफ एंड प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया। उसने तकरीबन 40,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन को तबाह किया है, लैंड को तबाह किया है। इतने सारे किलोमीटर्स में यह आ गया, इसका असर रहा। उसमें जिस पाकिस्तान को अपने में लपेट में लिया था और कश J&K को भी। तकरीबन 80 लाख लोग जो हैं, 80,000 लोग जो हैं वो उसमें तकरीबन 80,000 लोग पाकिस्तान में मर गए और बहुत सारे तकरीबन 1 लाख इसमें इंजर्ड भी हो गया। इसमें मुतासिर हो गई तकरीबन 5 लाख फैमिलीज इससे मुतासिर हो गए। इसमें तकरीबन 3.5 मिलियन लोग जो है वो घरों से मतलब बेदघर हो गए। जो बिल्डिंग्स कोलैप्स, उनके घर मकान गिर गए। 1.6 मिलियन बच्चे भी थे। उसके अलावा 3100 स्कूल इसमें डैमेज हो गए, 20,000 बच्चे मर गए और 20,000 जख्मी हो गए पाकिस्तान में। इसके अलावा तकरीबन 2.5 लाख जानवर जो हैं, फार्म एनिमल्स भी इसमें बिल्डिंग्स गिरने से मर गए। अगर देखेंगे इसमें तकरीबन 7,80,000 जो बिल्डिंग्स है या तो डिस्ट्रॉय टोटली हो गए या बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए, इसमें रिपेयर की जिसमें ज़रूरत थी। इसके अलावा प्रॉपर्टी अगर कितनी लॉस हो गई, तकरीबन $4 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स। तकरीबन उस हिसाब से वो प्रॉपर्टी का नुकसान होगा। इसमें 3 लाख लोग जो हैं वो इसके बाद अनएम्प्लॉयड हो गए। अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, उरी तहसील में, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में ये ज़्यादातर मुतासर हो, या करनाह टंगडार इसमें भी ये ज़्यादा मुतासर हो गई। वहाँ भी बिल्डिंग्स, रोड्स डैमेज हो गई, पावर कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो गई, लैंड स्लाइड्स आ गए, रॉक्स फॉल गए। इस बहुत सारे यहाँ जानवर या इंसान भी इसमें मर गए। अब क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेड है, ये सडन है, अब उसके मिटिगेशन मेजर्स को हम कैसे, इसके मिटिगेशन कैसे, उसमें कम नुकसान हो जाए लाइफ का या प्रॉपर्टी का, इसको कैसे कम किया जा सकता है। सबसे पहले जो है, जो बिल्डिंग्स है इनको इस हिसाब से डिज़ाइन करना चाहिए ताकि ये कम शेक होने चाहिए, जलजला आते वक्त ये कम शेक होने चाहिए। और बिल्डिंग बनाने से पहले क्या करना चाहिए, उसकी वो साइल जो है उसको
टेस्ट करना चाहिए कि हार्ड सॉइल है या सॉफ्ट। हार्ड सॉइल पर कम शेक हो जाएगा अगर कोई बिल्डिंग होगी, जबकि सॉफ्ट सॉइल पर ज़्यादा ज़मीन मकान या बिल्डिंग शेक हो जाती है। इसी के साथ क्या है, जो खासकर जो अर्थक्वेक प्रून एरियाज हैं उनमें उस डिज़ाइन से उस हिसाब से बिल्डिंग बनाई जाए ताकि ये शेक अर्थक्वेक के वक्त ज़्यादा शेक न हो जाए, ताकि ज़्यादा नुकसान न हो जाए। और हो सके तो दूर दूर ही बिल्डिंग्स बनाने चाहिए ताकि कम नुकसान हो जाए। इसी तरह अगर क्या करना चाहिए, इन्फोर्समेंट ऑफ बिल्डिंग कोड्स, इसके कंस्ट्रक्शन के दौरान हमें वही बिल्डिंग कोड्स या गाइडलाइंस इस्तेमाल करने चाहिए जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एंड नेशनल डिजास्टर्स ने दिए हैं, ताकि कम नुकसान हो जाए, कम असरात रहेंगे अर्थक्वेक के वक्त। इसी तरह ये जो म्यूनिसिपलिटी वेरिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग कोड प्लान्स, जो म्यूनिसिपलिटी उनको वेरीफाई करनी चाहिए कि जो बिल्डिंग बन रही है क्या ये उसी गाइडलाइंस पर बनती है जो गवर्नमेंट ने दिए हैं। इसी तरह जो पुरानी बिल्डिंग्स है अगर उनमें कोई जो अर्थक्वेक नॉन रेजिस्टेंट है, उनको उस हिसाब से रिटॉर फिटिंग के जरिए से उनको ठीक रिटॉर फिटिंग करनी चाहिए। मतलब अंदर अगर गिरानी नहीं है, अंदर ही से इसको नए सिरे से ओल्ड बिल्डिंग्स को अर्थक्वेक रेजिस्टर बनाना है, ठीक करना है इनको। लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए, इंजीनियर्स को, खासकर आर्किटेक्चर्स को, कंट्रैक्टर्स को, जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज है इनको, कि कैसे हम कैसे हम सेफली बिल्डिंग को बनाए ताकि वो स्ट्रक्चर या बिल्डिंग सेफ रहेगी। उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए किस तरह से बिल्डिंग बनानी है। इसी तरह हमें मॉक ड्रिल्स करनी चाहिए, लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम अर्थक्वेक अवेयरनेस प्रोग्राम्स पैदा करने चाहिए, खासकर स्टूडेंट्स को। इसी तरह सेफ्टी रूल्स, जैसे हम तो अर्थक्वेक को स्टॉप तो नहीं कर सकते, हम तक नहीं है, लेकिन इसके इम्पैक्ट को कैसे हम कम करेंगे, वो कौन से मेजर से, उसके लिए हम क्या कर सकता है कि उस कम ही नुकसान हमें उठाना पड़े। तो उससे पहले अर्थक्वेक से पहले हमें क्या करना चाहिए, किस तरह तैयार रहना चाहिए। बोल डाउन और प्रोवाइड अदर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स टू गैस एंड पावर अप्लायंसेस, जो हमारे पावर अप्लायंस हैं, जो हमारे ये गैस अप्लायंस हैं, इनको हमें इस तरह से सपोर्ट देना चाहिए, इस तरह रखना चाहिए कि शेक होते वक्त ये शेक ना हो जाए, ताकि ये लीक ना हो जाए और आग ना लग जाए या और कोई नुकसान हो जाए। और हमें अपनी अलमारी में जो हैवी चीज़ हैं वो नीचे रखने चाहिए, और जो लाइट चीज़ हैं वो ऊपर, ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऊपर रखने चाहिए, निकी के ऊपर हैवी नीचे लाइट। और हमें जो गिलास हैं या कोई गिलास गिलास या शीशे की कोई चीज़ है, वो उस तरह से, क्योंकि वो जल्दी जल्दी गिर जाती है, टूट जाती है, जिससे इंसान को नुकसान पहुंचाता है। इस तरह से हिसाब से रखने चाहिए कि वो जो ही शेक हो जाए वो नीचे गिर जाए, ऐसा नहीं, इस तरह से नहीं रखना चाहिए। बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने वाले हमें बिल्डिंग कोड्स फॉलो करने चाहिए, ताकि अर्थक्वेक हज़ार्ड्स को मिनिमाइज किया जाए, कम किया जाए। बिल्डिंग बनाते वक्त जो बेड रॉक है उसको नीचे तक खोदना चाहिए, उसमें रॉक पत्थर डालने चाहिए, नहीं कि मिट्टी वगैरह, फाउंडेशन स्टोन डालते वक्त। जो अनसेफ बिल्डिंग्स इनको रिटॉर फिटिंग इनको ठीक करना चाहिए। और मॉक ड्रिल्स लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए। अर्थक्वेक अगर अब आ गया तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, ये काम रहना चाहिए, नहीं कि दौड़ना नहीं चाहिए, चीखा नहीं मारता, लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। काम रहना चाहिए और दूसरों को भी अपने एक्शन प्लान के बारे में क्या करना हमें चाहिए, वो किस तरह से हम सेफ रहेंगे। अगर हम बिल्डिंग के अंदर है तो हमें देखना कि कहीं यानी मतलब विजिलेंट रहना चाहिए कि कोई प्लास्टर या कोई स्टोन या कोई चीज़ जो है ना वो मत हम पर गिरे जाए, बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, उसकी चाहिए देखना चाहिए कि कहीं हमें नुकसान तक न पहुंचाए। या कभी अगर बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ शेल्फ्स पर देखना, हमने मत किताब ऐसी जगह रखी है, कोई बुक केस ऐसा रखा है कि वो हम पर गिर जाए, उस तरह से नहीं है। या ये मत हिलता है कि इस तरह से रखा है कि वो गिरने वाला है, उस हिसाब से अच्छे से उसको रखना, पहले ही रखना चाहिए, ताकि अब उस वक्त भी देखना चाहिए कि ये मत गिरने वाला है। और गिलासों से या विंडोज है, जो मिरर्स है या चुमनी है, इससे दूर रहना चाहिए। या अगर हो सके ज़्यादा डेंजर लगता है तो अगर वहाँ टेबल है तो उसके नीचे या बेड के कॉर्नर में बहना चाहिए, या अपने ये इस सर को अपने बाजों से
بازو سے کور رکھنا چاہیے تاکہ سر پر کوئی ایسی چیز نہ پڑ جائے جیسے انسان کو اپنی ہوش کھو بیٹھے گا. اسی طرح دوسرا یہ کرنا چاہیے کہ کاملی آہستہ آہستہ چلنا چاہیے، باہر نکلنا چاہے اوپن ایریا کی طرف اگر ہو سکے تو. اور اگر باہر بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں یا پولز ہیں ان سے دور، ان میں خطر رہتا ہے ارتھکویک کے وقت، اس لیے ان سے دور ہی بیٹھنا چاہیے. اور اگر شیلٹر رہنی ہے، کبھی ہر سائڈ بلڈنگز ہی بلڈنگ ہے تو اس بلڈنگ میں پناہ لینی چاہیے جو لگے کہ وہ اسٹرانگ ہے، جلدی سے آہستہ گرنے والی نہیں ہے، بلکہ اسی بلڈنگ میں انسان کو مطلب جو سیف لگے، سب سے زیادہ سیف اسٹرانگ بلڈنگ اسی میں پناہ لینی چاہیے، نہ کہ ایسی بلڈنگ میں جو بوسیدہ ہو جلدی ہی گر جائے گی. اگر کوئی انسان اگر اب کوئی اسی گاڑی وغیرہ میں، تو گاڑی کو زلزلے کے وقت سٹاپ کرنا چاہیے اور اترنا چاہیے، اور کسی اوپن، خاص کر اگر گاڑی سٹاپ کرنی ہے اگر ہو سکے تو اوپن ایریا میں اس کو سٹاپ کرنا چاہیے جہاں کسی چیز کے گرنے کا خطرہ نہ ہو. اور اس دوران ارتھکویک کے دوران ایویلیٹرز یا یہ استعمال نہیں کرنے چاہیے، نہ کہ لفٹ کا استعمال کرنا چاہیے، بلکہ سیڑھیوں سے ہی بلڈنگ کے سے باہر نکلنا چاہیے. یہ ہو گیا اگر ارتھکویک کے دوران کیا کرنا چاہیے. اس کے بعد ہم کل پڑھیں گے اب ارتھکویک آ گیا ہے، اب ہمیں اس کے بعد کیا کرنا چاہیے.